good wishes to the team. And now the director, जिनको कोई भी genre दे दो, इतनी कमाल ढंग से उसको present करते हैं कि आप लोग relate कर पाते हो, फिर चाहे ये हो या कुछ और हो. Give it up for Mr. Vikas Bahal, ladies and gentlemen. Yes, we gotta make some more noise for the gentleman here. Wow. This is the team, ladies and gentlemen. शैतान की कुमार साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा. एक बड़ा आसान सा सवाल. पैनोरामा स्टूडियोज की फिल्म में या आपके साथ काम करने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना जरूरी है सर? बिकॉज यहाँ बड़े सारे नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, लाइक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको मिला है. व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जिनको नेशनल अवार्ड मिला एक साथ स्टेज पे हैं जी, और फिल्म में हैं जी, और सबने मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की है इस पर नेशनल अवार्ड वापस आए. क्या बात है सर, क्या बात है. यू नो, टॉकिंग अबाउट अजय सर और आपकी कोलैबोरेशन, ये तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं. जियो स्टूडियोज के साथ इस बार आप जो जुड़े हैं, थोड़ा सा वो बताइए. ये फिल्म पहली बार पैनोरामा स्टूडियो अजय जी की कंपनी देवगन फिल्म्स के साथ मिलकर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें जियो हमारे साथ में है. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि और हम आगे भी इस तरह का एसोसिएशन और फिल्मों में करने वाले हैं. आई एम श्योर. अभिषेक भाई, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, सुपरनैचुरल थ्रिलर और इस लेवल पे जाके उसको बनाना, क्या चल रहा था जब शुरुआत हुई थी इस फिल्म की? आई थिंक सुपरनैचुरल थ्रिलर एक बहुत बड़ा जॉनर है जो हमारे यहाँ पे बहुत कम बनता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दीज ब्यूटीफुल टैलेंट राइट नाउ हु एक्चुअली जॉइन्ड द force right now. And yeah, I think execution that you've seen is beautiful right now, what we did. Yes. I think it's a genre which we as an industry needs to all tap in. Yes. काफी बड़ा genre audience देखना चाहती है. So I think we're doing a good work by starting off the journey right now with this. So I think more of these films will be made, and I think it's one of my favorite genre to get into. I'm sure sir, मजा आने वाला है जब इसे देखेंगे. Now talking to the director साहब यहाँ पे. सर, सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये ऐसे वाले कितने लड्डू खिलाने पड़े थे इस पूरी कास्ट को साथ लाने के लिए? बिकॉज दिस इज अमेजिंग. कितना डिफिकल्ट था या आसान था? I think actually I didn't cast them. I think Ajay and Kumarji and Abhishek cast me in this one. They called me and they said, do you watch horror? I said no. Do you watch dark? Let me say that. When I asked him, he says, when we spoke about the film, तो he said, मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं हॉरर पिक्चर देखता भी नहीं, बनाऊंगा कैसे? I said, अगर डर लगता है तो then you're the right person to make it. Right. Yeah, so I said no to all the answers and Ajay said, correct, you're the guy to do this. So I don't know how that worked out. But I think from the time we decided to do the film to the casting, it took us by 5 days. Because the first people was our obvious choice to play this character. We couldn't look anywhere else. Maddie, we just thought, let's just approach Maddie and say, if he'll do a negative role of this proportion, you know, because this kind of a negative role has no, because when very senior actors do negative roles, they'll have a backstory to be like that, or they'll have some other, there's nothing, this is relentless. And we approached him and he loved it and he said yes. Jyotika loved the role, she said yes. Dhruv, we had to work very hard to chase and request, and you know, then he gave us feedback on the script and everything, and then we did. But I think from the point of thinking of making the film to casting was, I think, 4 to 5 days. Right. And I think in 40 days we were on the floor, right, Kumarji? Yes. 40 days we were on the floor. And I think it just worked so, like Ajay was saying, so beautiful as teamwork. Right. We were there, we used to go in the morning, we used to read the scenes together, because we had to shoot this film linear, which I've never done before, because we could not miss even one beat to go to the next one, because we knew we needed to know what are we feeling that day to be able to go next day. There was just one day where we went and shot one little moment which was supposed to be shot later, and we realized it's not working because that emotion had to just flow dot by dot. Right. So I think we all came together really well. We had a great time, and I'm still not going to watch horror. Even after this, he's not going to watch that. But we are definitely going to watch this movie जब ये release होगी 8th को. और फिलहाल, I know you have a lot of questions. Of course, we have the wonderful people from across the country. आप सबके सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले it's time for a quick photo op with this team. तो हो जाए? And then इशारे झुका दिल सितारे मैं आत्मा मैं परमात्मा
quickly get the chairs and then over to all you amazing people. Can we have the mics please quickly? तो पहला सवाल जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, खाली हाथ से बता दो. ठीक है, cool. I'll come to you, ma'am. We'll get the mics quickly. ले, sir. Mic. Cool. We all have mics. We got nothing. Yeah. Back was the best. जी मैम. जी, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से यहाँ पे सर. पहले तो टीम को बहुत बधाई, काफ़ी डरावना और अलग ये ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही अलग कहानी है. मेरा पहला सवाल कुमार जी से होगा कि इस तरह की अलग कहानी के लिए आपने स्क्रिप्ट की तैयारी, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट तो आपने बता ही दिया है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है. इसके पीछे क्या सोच रही, क्यों आपने सोचा कि शैतान को सीधे घर में पहुंचाया जाए? पहला सवाल तो ये होगा. और दूसरा, आपकी फिल्म की दृश्यम की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, रेड 2 की फ्रेंचाइजी आपने बनाई है, क्या शैतान की भी फ्रेंचाइजी आप बनाना चाहेंगे आगे? ये दो सवाल मेरे होंगे आपसे. अजय सर और हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि कोई सुपर नेचर हॉरर अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो करते हैं. तो हम लोग अपना भोपाल में शूट कर रहे थे, तो अजय जी से मैंने जैसे इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने बोला लेट्स हम इसको मिलके इमीडिएट पिक्चर को बनाते हैं. और इमीडिएट हम लोगों ने कास्टिंग प्रैक्टिकली 40 दिन के अंदर पूरी पिक्चर माउंट हुई है और हमने एटेस्ट टाइज जाके ये शूट की है. और डेफिनेटली फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट. हाय, लेफ्ट एंड ऊपर. अजय जी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो कोई ऐसा शैतान दोस्त जो आपको बहुत परेशान करता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा कोई इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, लेकिन सभी के सभी शैतान है और होना भी चाहिए. क्योंकि आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि कौन ऐसा है जो शैतान नहीं है. अच्छा, तो क्योंकि शैतानों की लिस्ट बहुत लंबी है. कोई एक आप जिसका नाम लेना चाहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब शैतान है. अच्छा. मुझे लगता है आप भी शैतान है. नहीं, मैं तो बचपन से. एंड ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसे आप अपने कंट्रोल में करना चाहें एंड जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपने कंट्रोल में करना चाहूँ. ओके. Hello, this is Jaya here from Bollywood Now. Abhishek, my question is to you. This side. Left, yeah. So we have seen you directing in Drishyam. When can we see you again directing? Like, which genre are you going to do next? Drishyam will happen when it's ready on paper, the part 3. And अभी तो फिलहाल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑलरेडी खत्म होगी, तो आई थिंक होपफुली दिस ईयर आई विल बी डायरेक्टिंग माय नेक्स्ट. Okay. अजय सर, माय क्वेश्चन इज टू यू आल्सो. आपका क्या बिलीफ होता है जादू टोना में और ये ब्लैक मैजिक्स में? आई थिंक इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुझे भी कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ देम आर ट्रू और आपके दिमाग के बने हुए हैं, लेकिन मुझे कोई, आई थिंक रेयरली कोई ऐसा मिला होगा जो इन चीज़ों में मानता नहीं है. आई थिंक हम जब घर से भी निकलते हैं या हमारी किसी की भी तबीयत भी ख़राब होती है तो हमारे पेरेंट्स सबसे पहले बोलते हैं नज़र लग गई किसी की या किसी ने कुछ कर दिया. So I think this belief is unanimous, and I am one of them. I also believe. आर माधवन जी इधर आपके राइट में, हाय लेफ्ट में. मधु BBC हिंदी से जी. सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, कमाल का है. मेरा सवाल आपसे है कि आपने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं और हर किरदार में आपने हम सबको एंटरटेन किया, बट इस किरदार में आपने डरा दिया, लाइक जो ट्रेलर में हमें दिखा. किस तरह से, क्योंकि हमेशा एक आपकी इमेज रही है चार्मिंग, मैडी से शुरू होते हुए और इसके बाद, तो अपने आप को इस किरदार में देखना खुद कैसा था अनुभव? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए क्योंकि जब मैंने तय किया कि ये फिल्म मैं करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम किस लेवल तक जाने वाले हैं या किस लेवल तक लोगों को डराने की कोशिश करने वाले हैं. एक बहुत अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था और पहली बार मैं अजय देवगन सर के साथ काम कर रहा हूँ. एंड आई कांट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन एंड विद द टीम लाइक दिस. कुमार जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत आराम से और बड़े प्यार से सेट पे रहे, हमारा अच्छा देखभाल किया गया और लोकेशन सेट से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे लगता था कि बहुत पीसफुल माइंड के साथ हम शूट पे गए थे। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर पाऊँगा, या मुझे नहीं कभी लगा कि ऐसा कुछ कर पाऊंगा जो लोग वाकई में देख के डर जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये ट्रेलर, टीजर और थोड़े तस्वीरें मेरी बीवी को दिखाई तो मुझे मतलब अलग ही नज़र से देखने लगे बिल्कुल। आज भी वो बोलती है कि थोड़ा दूर से देख के बात किया करो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत परेशानी मुझे होने वाली है इस फिल्म के बाद। हाय अजय जी, मेरा सवाल आपसे है। हाय, इधर हूँ भाव जी। मेरा सवाल ये है कि जो स्त्री है उसके बाद जो हॉरर जॉनर है, हॉरर या सुपरनैचुरल, वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब आपने काल या फिर भूत जैसी फिल्में की थी तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, और ख़ास तौर पर जो सुपरस्टार्स या स्टार्स जो भी कहते हैं वो इस पर कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे या आना नहीं चाहते थे। किया था तो वो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते। अगर कोई कमाल की स्क्रिप्ट किसी को मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि ये जॉनर जैसा मैंने पहले भी कहा, दुनिया भर में आप फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, दुनिया भर में जो हॉरर जॉनर है या जो सुपरनैचुरल जॉनर है वो बहुत चलता है। और हमारे यहाँ भी पहले बहुत फिल्में बनती थी, रामसेस तो बहुत फेमस थे इसके, और उनकी सारी पिक्चरें चलती भी थी, चाहे उसमें स्टारकास्ट बड़ी ना हो या जो भी हो। और मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, मुझे ये जॉनर बहुत पसंद है, तो मुझे काफ़ी टाइम से करना भी था। और भूत जब मैंने की तो उसके बाद भूत में अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। उसके बाद कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कि सुपरनैचुरल जॉनर की, और अब ये जाके मिली। Hi, on your left, this is Nawaz Kochra from Indian Express. This side, yeah. So I had a question for all three of y'all, Ajay sir, Madhavan sir, and Jyotika ma'am. In the trailer we see that the parents are seeing the child suffer, through the Vashikaran. I want to know that, as parents in real life also, were there any moments where, the story or any part of the story spilled over into your real life? It was there on your mind even after the shoot got over? No, nothing of that sort, but like Jyotika said, I mean, when you start thinking and having kids of this practically the same age, she also has, I also have, so somewhere, that fear comes into your head that what if this was the situation, you were in this situation, and I think that comes across, like she said, also in the performance. But वो एक डर ज़रूर, एक feeling ज़रूर आती है। हेलो सर, माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले सबको बधाई। अच्छा, मैं बीच में बोलूं? नहीं, मैं बोल रही थी कि इट्स द सेम आंसर, इट्स द सेम। ओके, मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप किसी इंसान की ताकत एक्चुअली महसूस करना चाहते हो ना, तो कभी उनके संतान के साथ कुछ गड़बड़ होते हुए देखिए। एक मतलब चाहे वो किसी भी कद का हो, कोई भी हाइट का हो, जितना हमें मतलब अपने आप को सॉफ्ट समझता हो, अगर उसके इंसान पे, उसके संतान पे कुछ आ जाए ना, तो रियल हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। और ये मैंने अपने निजी ज़िंदगी में भी देख रखा है। और जो हेल्पलेसनेस होता है ना, कि अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाए और आप कुछ नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा जो तकलीफ जो है, हेल्पलेसनेस का जो तकलीफ है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेयर कर पाएगा। इट्स सो आई थिंक व्हेन यू सी योर ऑफस्प्रिंग in somebody else's control, मतलब विदाई पे हम इतना रोते हैं, सोचे इस पे क्या होगा, है ना? तो किसी और के कंट्रोल में अगर वो जा रहा है तो you become ever powerful. माई सेल्फ पार्थ दवे, आई एम फ्रॉम गुजरात। सबसे पहले विकास सर से लेकर जानकी तक सबको बधाई। और मैंने जब वश फिल्म देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इतना ही अच्छा इसका ट्रेलर लगा है। तो मुझे ये पूछना है अजय सर से कि वश में, उसमें हितू कनोडिया, हितेन कुमार थे हमारे, दे आर सुपरस्टार ऑफ गुजरात, आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपको वश में ऐसी कौन सी बात लगी कि जिसके ऊपर ये ज़्यादा लोगों तक एडेप्टेशन होना चाहिए? कहानी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से हमने फिल्म की, और बाकी फिर हमने उसकी अपनी अडेप्टेशन करके अपने तरीके से उसको ढाला है। तो बेसिकली जो कहानी और जो मैडी कह रहे थे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कि जब आपके बच्चों पे तकलीफ आ जाए और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है, तब आप क्या करेंगे?
Hi, this is Jogendra Tuteja on your right. Hi. Okay, so question is for you, Maddie. So हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी, and then you said कि कॉमेडी वो है कि आप नहीं हंस रहे हो, बट सामने वाला हंस रहा है. इमोशन वो है कि आप नहीं रो रहे हो, बट यू क्रिएट दैट सीन. यहाँ पर मुझे हॉरर में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, दैट आप चीखा चिल्ली नहीं कर रहे हो, बट द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस दैट यू आर गिविंग, द काइंड ऑफ मूड दैट यू आर क्रिएटिंग, मे बी दैट्स क्रिएटिंग हॉरर. सो डू यू वांट टू इलैबोरेट ऑन दैट एस्पेक्ट? Yeah, I think you adopt different strategies to portray the character correctly. मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा ओवर प्ले ना करते हुए अगर एक चार्मिंग सा बंदा बनाए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उसमें वो हॉरर इंट्रोड्यूस करें, तो मैं देखना चाह रहा था कि वो कैसा लगेगा. सो दैट इज ट्राइंग टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल. और उसके बाद जब वो फैल जाता है तो फिर डज इट रियली क्रिएट द फियर. दैट वाज व्हाट द अटेम्प्ट वाज. Exactly. And a follow-up question for Janki here. So Janki, now you have already done something like this, and then to recreate a similar emotion, I know it's all acting at the end of the day, but still, how difficult or how easy, how convenient it is eventually to relive the entire thing? I'll say yes, it was quite stressful, पर मज़ा तो आया करने में. Okay, thank you. हाय, दिस इज सोहेल. यहाँ पर आपके सामने अजय जी, ऑन योर लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड. या दिस सोहेल फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड. सबसे पहले तो ट्रेलर इज अमेजिंग, बहुत ही इफेक्टिव था और दिलों की धड़कन तेज़ कर दिया एक्चुअली. मेरा क्वेश्चन ये है कि इट्स टॉकिंग अबाउट फादर एंड अ फैमिली रिलेशनशिप. तो आज के युग में, मतलब जब हम कह सकते हैं ये कलयुग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है. तो ऐसी कोई चीज़ें जो आप अपने बच्चों में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे कि एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारी, मैडी ने गेमिंग के बारे में बात की, जो कंट्रोल करते हैं. तो इफ़ एनीवन, आप लोग कुछ बताना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ हो जो आप अपने बच्चों में कुछ कंट्रोल लाना चाह रहे हो, उस चीज़ से दूर रहे वो. अजय जी, मैडी, ज्योति. नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको समझाना पड़ता है. समझाए बिना काम नहीं चलता, और फिर वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे ये आपको देखना पड़ता है. तो इस वक्त अगर स्टेज में मैं बोलूँगा कि मैं अपने बच्चों में ये बदलना चाहता हूँ, तो मुझे घर जाके मार पड़ेगी. तो बट जैसा कि आप कह रहे थे और मैडी कह रहे थे, सोशल मीडिया हो गया, गेमिंग हो गई, आई थिंक ये सब एक लिमिट तक होनी चाहिए, कंट्रोल में होनी चाहिए. ये आई थिंक हर पेरेंट चाहता होगा. या मैडी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, यही कि हम आजकल ना फोर्सफुली नहीं कंट्रोल कर सकते बच्चों को, उनको समझाना पड़ता है. एक तो वो फोर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, तो उनके साथ बैठकर एडल्ट की तरह बात करो, फिर समझाओ कि हर चीज़ जो आप पढ़ते हो सोशल मीडिया में वो ज़रूरी नहीं कि वो सही है. आप बहकावे में मत आ जाओ. इतनी सारी चीज़ें पहले आपकी तारीफ़ें की जाएंगी या फिर आपकी बुराई की जाती है, सब सच मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दुनिया देख रखी, तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे अजय जी ने कहा, उनके साथ समझौता करके, समझा के उनके साथ, मतलब थोड़ा रीजनेबल होके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना फोर्स तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते. जैसे बात करते वशीकरण की, तो हमने देखा हमारे इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, वी बिलीव इन लॉट्स ऑफ थिंग, लाइक वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. तो आई थिंक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सारी दुनिया में होती है. दुनिया में होकर, हाँ, तो फिल्म इंडस्ट्री का छप जाता है थोड़ा, हाँ, बट बाकी तो हर जगह होती है. तो कभी इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ, पहले बीच में बंगाली बाबाज बहुत होते थे, वशीकरण की बातें करते थे, तो कभी इस तरह से कोई कुछ चीज़ें हुई, या अल्टीमेटली देयर अ मैसेज आल्सो, लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ट्राई टू गिव थ्रू द फिल्म, दिस इज, ये चीज़ सही है, गलत है? नहीं, गलत तो सबको पता है कि ये गलत है, उसमें कोई मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं किसी को. लेकिन जो कोशिश करते करने की, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब होते होंगे, लेकिन जो कोशिश करते करने की, वो कोशिश तो करते ही हैं. तो फिल्म के मैसेज की बात नहीं है, बट मैसेज जैसे हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी है कि इवेंचुअली द गुड विंस, और जो शैतान की हार तो होनी है कभी ना कभी. Hi, here. Hi, this is Vinita from India.com Z Media. My question is to all of you, in fact, that Ajay sir, आपने बोला that you have had experiences, and even if you haven't had experiences, what is the first thing that you should actually do if you experience something spooky out there? Yeah, I think you should be mentally and physically, mentally strong, and internally strong, because what I believe is that if you weaken from the inside, the other person can overpower
power you. Yeah. So if your brain is strong enough, then I don't think anything can harm you. Yeah. To the little kid out there who's actually not being the kid anymore, आपके लिए film कितना emotionally difficult था? Because you know it is a film that might take a toll on your mental health, you know, probably. And what were the exercises that you actually do to get into this character and not let this affect you? Yeah. कुछ नहीं, वो हंसते खेलते शॉट देता था, बाद में नॉर्मल भी हो जाता था, 2 भूल जाता था. बिल्कुल. That's fantastic. Yeah. We'll take 2 more questions, okay? Thank Hi, you. Samir here from Movie Talkies. Hi, in the middle, in the left middle. Yeah, here. Hi, I have a common question for Ajay and Maddie, sir. So the question is, you know, since we know like Ajay sir is playing the hero and you are playing the antagonist, that Shaitan, but like during the pre-production stage or something, have you guys like thought about swiping the roles? Like it's been a while, like Ajay sir haven't played the antagonist. When we started shooting, Maddie said the first thing he told me is, "Why aren't you doing this role? Why have you given it to me?" So I told him that I really feel for the character, the father. So I will not be able to do justice to the other character. It's a much stronger character though. But you know, the character I connect with, I wanted to play that. So now I'm going to make a very, very important statement actually. I have been in the industry long enough to know that I have been a huge fan of Ajay sir's work. I've not had much time to interact with him before this movie. And I have really seen him act, and I've been a huge fan of the way he emotes subtly and does the kind of roles that he does. And, you know, even during the publicity, doesn't take any credit, walks away and keeps doing his work. But now I can tell you that if there's any Singham, the real Singham in the industry, it is this man over here who I've become a huge fan of. I mean, the film is over. The film is over. I have nothing to gain by this. But I did ask him that question कि भाई आप ये रोल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि सबसे मसाला वाला रोल तो इनका है. उन्होंने जो जवाब दिया था वही है. पर जब हमने ये फिल्म शूट की थी ना, उस वक्त हमने टाइटल नहीं डिसाइड किया था. It was wonderful shooting with Vikas sir and अपने the producer साहब. मैं हमेशा पूछता था कि फिल्म की टाइटल क्या है, और उस वक्त फिल्म का टाइटल शैतान नहीं था. सो मुझे नहीं पता था कि इस कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस होगा. जो हमने पहले फिल्म में देख रखी थी वो विलन था, पर आपने उसका टीजर देखा होगा. पूरा टीजर इन्होंने बनाया है अबाउट शैतान, विच इज़ माई कैरेक्टर. अब आज मैंने ये ट्रेलर देखा, इसमें भी मतलब पूरा हाईलाइट उन्होंने शैतान को किया है. मुझे लगता है एक शेर दिल और जिगर और एक मैच्योरिटी और इंडस्ट्री के साथ और अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार होना चाहिए किसी को, कि ऐसा कोई उठा के लड्डू किसी और आर्टिस्ट को दे दे. एंड फॉर दैट आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. मैंने थोड़े बहुत कोशिशें की हैं अपनी फिल्म में करने के लिए, पर इतना बड़ा, प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं, मतलब यू नो कहानी भी इन्होंने चुना है, कास्टिंग भी इन्होंने की, और इतना बड़ा रोल उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया. आई मीन आई ओनली होप एंड प्रे कि आई कैन डू जस्टिस टू द काइंडनेस दैट हैज बीन शोन टू मी बाय अजय सर एंड हिज टीम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. थैंक यू सो मच. अजय जी, शैतान को बनाने में तकरीबन कितने पैसे लगे होंगे? कुछ शैतान ही आके आपको बताएगा. कौन है भाई ये पैसे वाला? कहाँ से आया ये सवाल? हाँ, गिन के बताता हूँ. अरुण भाई तुम्हारा कमाने वाला उससे बहुत कम. Okay, we'll take one more question. Hi, congratulations on the trailer. It looks amazing. My question is for Vikas sir. Sir, we have known you for directing drama, comedy, basically slice of life films like Queen and Super 30, and switching from that genre to the psychological thriller genre. I mean, execution-wise, बहुत changes होते हैं about the shot taking, edit. So, what were your challenges being the captain of this ship? So honestly, I love the fact that I'm nervous when I'm starting the next film, and that nervousness comes a lot from the fact that I've not done the genre before. Nervousness can come when you've done the genre before also, but it's much more when you walk into this world, and it is a world. This genre is a world of its own. It has its own audience, it has its own directors, music, everything. So honestly, when we reached London, me and my AD team, we sat down and I told everybody, मैं एक बात बोलूँ, मुझे फिल्म बनानी आती नहीं है, ठीक है? तो what we'll do for the next 10 days, we will sit every day
and we will learn how to make a film like this. So we used to sit and we used to watch YouTube videos. We used to read interviews of other directors. We used to look at camera work. So we actually took ourselves back to almost like tuition classes. And I remember one day we were watching Shining as one of the examples to watch. We watched Shining, and after that the team left. And I went out to say bye to them, and there was a long corridor over there. And I saw that corridor and said, what have I done to myself by watching Shining and now going back to the room? But I think I think our as just storytellers, it's just a great challenge to try new things and stay nervous all the time, and hopefully qualify in different genres, so it opens up your world of storytelling. Thank you. Yeah, one last question. Jyotika. Ji. Jyotika, you did. Jyotika here. You did Doli Saja Ke Rakhna with Priyadarshan. Even years culture ninge Hindi film le pandranga yang. I think that sounded really bad in Tamil. By the way. It sounded vulgar a little bit. Can you answer my question, please? I think it should be 25 years. 25 years, yeah. Yeah. Why after so many years? I got very busy in South, and I just got diverted, and then waiting for something really special. I think at this stage you only want different work. So this was very challenging. But I must tell you, the first shot we took of Jyotika, we were all sitting there and we said, what a loss for 20 years for all of us. How could we not have her around us for 20 years, and now we're going to make up for it. And विकास जी, आपने इसमें राम से जैसी बिल्ली की आवाज और वो घंटी की आवाज नहीं रखी है? वो तो मेरी निकल रही थी. मैं कैमरा के पीछे बैठ के मेरी घंटी बज रही थी. But it's not that zone. It's very, very real. Like Ajay said, how we every day put nimbu mirchi, kala tikka, dhaga, all of that. What do? We do that to prevent, because we believe this happens. So it's in a very, very real space, and that's why there is no ghanti and there's no squeaky sound. Hi guys, good afternoon. Here, in center. I'm Bhavneet from ABP Sanjha Punjab. So इतने सालों से हम आप लोगों को काम करते देखते आ रहे हैं. आज इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज़ लगी कि एक्टर्स एक ऐसी चीज़ है जिनको जितना भी खाली कर दो उसके बाद वो फिर भर के सरप्राइज कर सकते हैं, राइट? और ये मैं जानना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स को हमने इतना काम करते देखा है, इस फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब आपके को एक्टर ने आपको सरप्राइज कर दिया, बोला अरे बाबा रे ये भी कर सकता है? क्योंकि कहते हैं जब एक आर्टिस्ट को दूसरा आर्टिस्ट सरप्राइज करता है वो उस आर्टिस्ट के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है. मैं वो जानना चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ एक एक करके. अजय सर, माधवन जी एंड ज्योतिका मैम, प्लीज़. आई थिंक इन दोनों ने तो मुझे सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि ये जो कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसलिए हम सबको कास्ट भी किया गया था एक्चुअली. सो आई रियली डोंट नो. मेरे लिए आई थिंक जानकी एंड ज्योतिका दोनों, मतलब अजय जी तो स्टॉलवर्ट हैं, पर जितना छूट दे के वो बाकी एक्टर के साथ काम करते हैं वो देखकर मैं अपने आप वो अपनाना चाहता हूँ. पर इन दोनों ने, एक तो ज्योतिका का जो एबिलिटी है टू डू एक्शन, वो देख के मैं हैरान हो गया. मतलब मैं कह रहा हूँ पागल बिल्ली तो कम पड़ेगी, ये अलग ही किस्म की एक्शन दे रहा हो एकदम लिटरली. और जानकी की खासियत ये है कि ये पहले कर चुकी हैं, फिर भी जो सिंसियरिटी और जो हार्डवर्क और जो कमिटमेंट के साथ इन्होंने रोल निभाया, क्योंकि उनका रोल निभाना आसान नहीं था, बिकॉज फिजिकली वेरी डिमांडिंग. उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई है इसके लिए इट इज़ क्वाइट एक्सेम्पलरी एंड नॉट सीन फ्रॉम न्यू एक्टर्स. आई हैव गॉट अ ग्रेट होप फॉर हर फ्यूचर. Thank you, sir. Sir, the biggest surprise for me was seeing Ajay, the way he conducted himself all through the shoot. मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया है, almost all down south. और रिसेंटली मेरी लास्ट फिल्म ममूटी सर के साथ थी, और अब इस फिल्म में भी अजय के साथ आई हैव जस्ट लर्नड वन थिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स कि हाउ यू जस्ट गिव अवे. उन्होंने बहुत आई मीन सेल्फलेसली ये पिक्चर की है, एंड ही इज जस्ट गिव. इवन पोस्टर में आई डोंट नो, मैं व्हेन आई डू अ फिल्म इन साउथ ऑल्सो विथ माई हीरोज, कौन इतना पोस्टर में डालता है? मतलब it's been a pleasure to watch Mammootty sir and Ajay, and to see such these are the real stalwarts of cinema, I feel. You know, लेते तो सब है, देना बहुत
आई थिंक रेयर है. तो दे आर गिविंग बैक टू सिनेमा. आई थिंक दैट्स ग्रेट. एंड ऑफ कोर्स मैडी एंड मी, हम 20 साल के बाद पिक्चर वापस कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रोथ फॉर एन एक्टर कि आप हीरो हीरोइन के बाद जब आप एक किरदार में एक परफॉर्मेंस देते हो, आई थिंक दैट शोज, दैट मेक्स अस फील देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. 20 साल बाद जब मैंने इनको बाहों में लिया था, दोनों इमोशंस टोटली डिफरेंट थे. Or of course, I don't have to say about the kids. Like Janki to is the hero of the film, and both of them were. But it was, I can't say competition भी था. हम सब अपने रोल में इतना बैठ गए थे कि it felt like a family. I think picture भी 25-30 दिन में खत्म हो गई because we were all just flowing with it. सो आई थिंक सभी का इम्पैक्ट इस पे कुमार जी. एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी. मतलब मैं इतनी बार सबको थैंक्स बोल चुकी हूँ क्योंकि फॉर मी टू कम बैक टू बॉलीवुड एंड गेट दिस काइंड ऑफ कम बैक, इट फील्स वेरी स्पेशल. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.